wiping away the distress. Everyone, can you hear me? Okay. মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ধরণীর পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা ধরণীর পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ কত সন্তান কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর থ্যাংক ইউ Give a loud applause. Now we have a advanced asana. People are going to do some really good asanas. So I welcome Karthik and group on the stage. Please welcome them with a loud applause. Please maintain silence.
come on this. So did everyone like it, by the way? So after 10 days, will I be seeing every one of you here doing these asanas? Why not? Huh? Okay. Karthik? Okay. So that is Nani, who has done the asana. Nani Ram from BSc. Karthik Bhaiya, BSc. Himanshu and Uttam Bhaiya. Give them a big round of applause. Very good. Marvelous. Thank you very much. Okay, now, very nice. Okay, so we are going to have an invocation dance by Latika Didi from BSc. Welcome her with a big applause. Please do not whistle. Clap, clap, everyone, come on. Louder claps, come on, encourage. Louder claps, come on, everyone. Woo! Make some noise. I can't hear you clapping. Wow, well done. That was a brilliant performance, wasn't it? I can't hear you. Was it good? Very good, excellent, marvelous. Okay, now we are going to have a new performance called Deep Yoga by Shamali. Second Sem, please welcome her on the stage with a big applause. Louder, give her a loud clap. ಇದು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯೋಗ
शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् आयुर्कामार्थसिद्धये लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् Big applause! What a wonderful performance. Even I wish I could do all that. So I'm going to practice from now on, huh? Okay. Now we have a good comedy skit. You guys ready to laugh and have fun? Yes, good, good. So now I welcome Karthik and group for a mobile skit. Mobile skit. Lights off, please. Misuse the mobile in many ways. So let us watch how people are misusing the mobile in different situations through this mime. Give an applause. Yes. कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। शतमानं भवति शतायुः तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Please get ready for the practice of Yoga Nidra. Lie down in Shavasana, feet slightly apart, arms beside the body with palms Please sit down, facing boys. up. Hush, 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 Papa's sleeping. Volume कम कर। पापा जग जाएगा। Volume कम कर। पापा जग जाएगा।
चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ झुमका झुमಕಾಯಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಕಾಯಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಶುರು ಪ್ರೀತಿದ್ದು सीढ़ी बजा के बोल भैया ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ Please stay on the stage, stay on the stage. I'd like to introduce you, all the drama members. Huh? Yeah? Nandu, Sunil, Karthik, Narendra, Sanatan, Naniram, Panda,
Ravi, Mutturaj, Himanshu, and Nitin Raj. All are from BSc. Give them a big round of applause. You're never going to use your mobile? Really? We'll see, we'll see. Okay, good. Now, so listen up. So now we have a drama on Taittiriya Upanishad by Biplab and group. Give them a big round of applause. Okay. Last one, okay? Thank you very much. Finally, they are not going against the society, but they are destroying themselves. Let us understand this concept through this mime. Big round of applause.
Friends, if the society does not accept our talent, we should not go against this society, because you and society is not different, both same. So let us understand this truth and live for our social welfare. Bolo Bharat Mata Ki Vande. Give them a big round of applause, everyone. Bharat Mata Ki Vande. Excellent, very good. That was a really spectacular performance by Karthik and group. Okay, now we are going to have the drama that we've all been waiting for. The drama on Taittiriya Upanishad by Biplav and group. Give them a big round of applause, everyone. Taittiriya Upanishad. It is one serious drama. Please, with patience, say all those things. Shanno bhavatvaryama Shanna indro brahaspatihi Shanno vishnururukramaha Namo brahmane Namaste vayo Tvameva pratyaksham brahmasi Tvameva pratyaksham brahma vadishyami Rutam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Today, we are going to present a documentary based on Taittiriya Upanishads, Shikshavalli and Bhrigovalli. The Taittiriya Upanishad belongs to the Yajurveda. This Veda has been handed down to us generation after generation in two recensions, the Taittiriya and the Vajrayana. The Taittiriya recension is the older and more important of the two. It contains a Samhita, a Brahman and an Aranya. The 7th, 8th and 9th chapters of the Taittiriya Aranya constitute this Upanishad, and they are respectively known as Shikshavalli, Anandvalli and Bhrigovalli. Now, there is a dance which depicts dance of nature during the initiation of creation, showing how all Panch Mahabhutas come one by one and starts creating universe, as is being depicted in Shikshavalli as well as Sankhya Darshan. The first person is representing Purusha or Param Brahma, who is Nirgun, Nirvikar and omnipresent. The second person, she is representing creation or Prakriti, which in Guna is similar to energy, power. When Nirgun Brahma manifests जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा
पादावलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरद्धणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरद्भगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्धरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रस्फुलधूलिधोरणि विधोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गमालयानि बद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर Naguvalli, which shows that how a guru helps disciple, that is Varun and Bhrigu, who are also father and son by relation, in acquiring the real knowledge through a thorough understanding of the human personality, which according to this Upanishad is made up of 5 shits, that is Panchakosha. Guys, please maintain silence. रहा है, पवन चल रहा है, नदियां बह रही है, इतना भार बहते हुए भी पृथ्वी स्थिर है। परंतु इस पूरा सृष्टि का मूल क्या है? क्या है इसके पीछे रहस्य? वो गुरुदेव आ रहा है, उससे मैं पूछूं। वत्स, इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? प्रणाम गुरुदेव। कथास्त गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ सूरज, पृथ्वी, नदी और आकाश को। चारों ओर कितना आनंद ही आनंद है। फिर भी क्या वत्स? फिर भी क्या? इतने आनंद के बीच लोग कितने दुखी है गुरुदेव, कितने दुखी है। जो खो रहा है वो खोकर दुखी है, जिसे मिल रहा है वो और भी पाने के लिए दुखी है गुरुदेव, और भी पाने के लिए दुखी है। यही तो माया है वत्स, यही तो माया है। माया? ये माया क्या होता है गुरुदेव? ये माया क्या होता है? माया जो नहीं है इसे समझना ही माया है। तो ये दुनिया सब कुछ माया है, तो सच क्या है गुरुदेव? तो सच क्या है? सत्य तो आनंद है। इसे पाने के बाद मनुष्य के मन में कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता। वो तो पूर्ण हो जाता है, वो तो पूर्ण हो जाता है वत्स, वो तो पूर्ण हो जाता है। आनंद? ये आनंद क्या होता है गुरुदेव? जिसे मिलने के बाद दुख नहीं रहता, दर्द भी नहीं रहता, वो आनंदमय हो जाता है। वो आनंद क्या है गुरुदेव? मुझे बताइए, वो आनंद क्या है? आनंद तो ब्रह्म है। यही तो अद्वितीय आनंदमय स्वरूप है।
पिताश्री, मैं उस आनंद स्वरूप को जानना चाहता हूँ। मुझे बोलिए, कैसे मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ? Everyone, please sit down. मैं तुम्हारा Please sit पिता down. होने everyone. के साथ तुम्हारा गुरु भी हूँ। गुरु का परम कर्तव्य है कि शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाए, उसे ज्ञान के मार्ग पर चलाए। Volunteers. तो गुरुदेव, मैं कैसे उस ज्ञानमय परम ब्रह्म को जान सकता हूँ? उसके रास्ते मुझे बताइए गुरुदेव, उसके रास्ता मुझे बताइए। अवश्य अवश्य, परंतु इस परम ब्रह्म को आंखों से देखा नहीं जा सकता, मुख से बोला नहीं जा सकता, श्रुति से भी सुना नहीं जा सकता। इसे तो सिर्फ तप से ही पाया जा सकता है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ, तप करो और परम आनंद का लाभ लो। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं अपने लक्ष्य में सफल बनूं। तथास्तु। All the volunteers and everyone to sit down and be quiet. I mean, not ignore. Everybody, please be quiet and sit down. I request everyone to please stay seated as the अपने program पिता is का continuing. आशीर्वाद लेकर भृगु तपस करने के लिए घने जंगल में चला जाता है। देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं और एक दिन उफ, बहुत दर्द हो रहा है। खाना कहाँ मिलेगा खाना? ऐसा लगता है कि मैं भूख के कारण मर ही जाऊंगा। हे अपरिचित, आपका क्या हुआ? क्यों आप इतना क्षीण दिखाई दे रहे हैं? आपके चेहरे में इतना कष्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं अपरिचित? ऋषि, मैं 7 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। अगर आज मुझे खाने को नहीं मिलता है तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मृत्यु? ओ, अन्न? ये अन्न ही शरीर है। अन्न के सिवा अन्य कोई कारण शरीर निर्माण में नहीं आता। अन्न नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेगा। हाँ, अन्न ही सत्य है, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि इस शरीर के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। भृगु खुश होते हुए पिता श्री गुरु वरुण के पास जाता है और अपने अनुभव को अपने पिता के सामने व्यक्त करता है। वरुण खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, पर फिर तपस करने का आदेश देते हैं, क्योंकि शरीर ब्रह्म नहीं है, यह पूर्ण सत्य नहीं है, और पूर्ण सत्य अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए शरीर से आगे जाना पड़ता है। भृगु तपस करने चला गया। कुछ साल बाद भृगु अपने मानव शरीर से एक मुर्दे शरीर को देखता है। ये भी तो एक शरीर है, पर ये चल क्यों नहीं रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आंख भी तो पत्थर जैसे बन गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस शरीर में नहीं है, जिसके कारण वो पत्थर जैसे बन गए हैं? ऐसा क्या नहीं है इसमें? हाँ, प्राण ही है जो शरीर में नहीं है। प्राण ही सत्य है, प्राण ही ब्रह्म है। हाँ, मुझे मिल गया गुरुदेव, मुझे मिल गया, सत्य मिल गया, सत्य मिल गया। बहुत तप करने के बाद भृगु मानव शरीर से एक ऐसे आदमी से मिला जिसे कुछ होश नहीं है। सांसें तो चल रही है, पर शरीर पत्थर जैसा बन गया है, मानो पूरा शरीर स्थिर हो गया हो।
आंखें खुली होते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहा, ना तो कुछ सोच पा रहा है, ना ही कुछ बोल पा रहा है। फिर बहुत खुश होते हुए भृगु अपने पिता के पास आया और पिताश्री को अपने अनुभव के बारे में बताया। वरुण बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए पुत्र को समझाया कि मन ब्रह्म नहीं है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। उसे जानने के लिए और भी आगे जाना पड़ेगा। अभी सोने का खान तो मिल गया है, पर हीरा पाने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए भृगु पुनः वापस जंगल में तप करने के लिए चला गया। Everyone, please be quiet. Please maintain silence. जो आदमी जा रहा है, इसका तो शरीर भी है, प्राण भी है और मन भी है, परंतु मन के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। कभी ये हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी इधर कभी। फिर बहुत खुश होते हुए भृगु अपने पिता के पास आया और पिताश्री को अपने अनुभव के बारे में बताया। वरुण बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए फिर बहुत खुश होते हुए भृगु अपने पिता के पास आया और पिताश्री को अपने अनुभव के बारे में बताया। वरुण बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए पुत्र को समझाया कि मन ब्रह्म नहीं है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। उसे जानने के लिए और भी आगे जाना पड़ेगा। अभी सोने का खान तो मिल गया है, पर हीरा पाने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए भृगु पुनः वापस जंगल में तप करने के लिए चला गया। जो आदमी जा मन के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। कभी ये हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी इधर कभी उधर जा रहा है, अर्थात इसका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। बुद्धि क्या विज्ञान? विज्ञानी सत्य है, विज्ञानी ब्रह्म है। विज्ञान ब्रह्म है ति विजान्यात्, विज्ञान ब्रह्म है ति विजान्यात्। आनंद के साथ भृगु अपने पिता के पास आया, परंतु इस बार भी वो निराश ही हुआ। गुरु वरुण ने उसे समझाया कि विज्ञान ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान सत्य को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान से भी आगे जाना पड़ेगा। पिता की बात सुनकर भृगु निराश तो हुआ, फिर भी हताश ना होते हुए तपस करने के लिए फिर से जंगल में निकल गया। कई साल बीत गए, पर भृगु वापस नहीं आया। ये देखकर उसके पिता बहुत चिंतित होते हैं और यही चिंता उन्हें भृगु की खोज करने के लिए मजबूर कर देती है। वरुण कई नदियां, पहाड़ पार करके अंततः वहां पहुंचते हैं जहां भृगु ध्यान मग्न बैठा है, और वे ये देखकर अचंभित रह जाते हैं
कि भृगु समाधिस्थ है। उसके चेहरे से असीम आनंद की चमक फूट रही है। शरीर शांति के दिव्य प्रकाश से उद्दीप्त है। इस बार ना तो विज्ञान का अहम था और ना ही मन में कोई संशय जो उसे उसके पिता के पास लेकर जाए। केवल आनंद, अनंत असीम आनंद। उसके पिता ये जान जाते हैं कि उसके हृदय में परम शांति ने अपना घर बना ही लिया है। अंततः वो जान ही जाता है कि सृष्टि का अनादि अनंत सत्य आनंद ही है। आनंद में ही संपूर्ण जगत का रहस्य छिपा है।